maintain their independence. Similarly, Uday India, I hope the way it is maintaining its independence, the way it is analyzing the political situation in the country, it will have a great contribution for the country. I pray Lord Jagannath to bless Uday India, to bless its editor, Deepak Rath, and the entire family, to flourish and make Uday India a success. Thank you. Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatume. Ladies and gentlemen, I would like to thank Harichandan ji, and we'd like to request Anil Dhir ji to give him a small token of appreciation for his presence here. Anil Dhir ji. I'd also like to take this opportunity to invite a very special guest we have here, Prabhat ji of Prabhat Prakashan, Ocean Books Private Limited. He has been the force behind this book, while Deepak Kumar Rath has written it. It's a compilation of 100 of his editorials. It is thanks to Prabhat ji that this has been published in such a beautiful way. Time to Click India. I'd like to request our Honorable Minister for Tribal Affairs, Shri Joel Ramji, to please honor Prabhat ji for having published this wonderful book. Time to Click India. The author, the publisher, and an icon of strength and conviction, Shri Joel Ramji has been with the BJP from Orissa. He made history when he became the first tribal minister of India under the Vajpayee government in the cabinet rank in the newly created Ministry of Tribal Affairs. He was the sole winner in the past elections from the party, but he certainly showed that he was a strength to reckon with when he won the Sundargarh seat. His political career has been vast, and he has occupied many, many different positions. He served as the member of the Legislative Assembly of Orissa, and of course, he was appointed as Vice President of the BJP in 2013. He is a great one to get people to perform because of his charming, endearing, humble demeanor, and yet his strict follow-through, which ensures that things are not left midway. Nothing better than a minister like Shri Joel Ram for making a project like Make in India successful. Ladies and gentlemen, I'd like to hand over to Honorable Minister for Tribal Affairs, Shri Joel Ram. मंच में बैठे हुए परम पूज्य स्वामी जी, हमारे मंत्रिमंडल में पुराना साथी बल्लभ भाई काथरिया जी, हमारे एरिया में जिनका काम है, डालमिया जी और झुंझुनवाला जी, गुप्ता जी, नंदा जी, और हमारे वरिष्ठ नेता उड़ीसा के पूर्व मंत्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, मेरे को लास्ट में कंक्लूडिंग सेशन में आप लोग को संबोधित करना था, लेकिन आप लोग को पता है कि असम में जो घटना हुआ, अभी तक जो रिपोर्ट मिल रहा है कि 52 जनजातियों को, संथाल लोगों को हत्या हो गया है। और माननीय राजनाथ सिंह जी अभी जाएंगे, उनके साथ मेरे को भी जाने के लिए प्रधानमंत्री जी का कैबिनेट से मैं उठ के आ रहा हूं, निर्देश हुआ है। तो इसके कारण मैंने दीपक रथ, जो उदय इंडिया के एडिटर हैं, आज ये मेक इन इंडिया का जो इस थीम के साथ जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को कुछ शब्द बोलने के लिए, मेरा प्रेजेंस, मेरा एसोसिएशन, मेरा सपोर्ट
इस थीम के साथ हो, इसके लिए कुछ बोलने के लिए मौका दिया जाए, इसलिए वो बीच में से मेरे को दिया। मैंने उनको आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आप लोग को भी यहाँ आभार व्यक्त कर रहा हूँ। ऐसे मेक इन इंडिया के बारे में कुछ बात मैं बताऊं, ये मेरे को सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन मैंने हमारे उड़िया में एक प्रभाव है, उस प्रभाव के साथ में कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वो है कि उड़िया में है, जहां नहीं भारते तहां नहीं जगते। इसका मतलब है कि भारतवर्ष में जो नहीं है वो जगत में और कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि भारत में जो है, मतलब वो जगत का सब कुछ यहाँ है, सब कुछ यहाँ है। इस लेख के साथ उस उड़िया लेखक ने बहुत सारे चीज वहाँ प्रतिपादित किया है, उसको जस्टिफाई किया है, उसको बताया है। यहाँ का आप कुछ भी चीज ले लीजिए, भूभाग को ले लीजिए, ज्योग्राफिकल सिचुएशन को देखिए, यहाँ का मौसम को भी देखिए। मेरा ख्याल से वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि जिसमें आपका 6 ऋतु 12 महीना में 12 टाइप का ये होगा। पर्व से लेके, त्योहार से लेके, आपका रिचुअल्स, ये सब में जो है, भारत ही एक देश है जिसमें साइंटिफिक रीजन्स को आपका धर्म के साथ जोड़ा गया है और उसको दर्शाया है। मैंने उड़ीसा से आता हूँ। वैसे तो इंडिया में सब में है कि तुलसी को हम लोग पानी डालते हैं सुबह नहा के, शाम को सोने से पहले सूर्य अस्त हो जाने के बाद हम लोग दीप देते हैं। ये हमारा भारत का परंपरा है। तो मैंने एक दिन पूछा कि तुलसी का पेड़ को ही ऐसा क्यों किया जाता है, दूसरा कोई पौधा को लगा के ऐसे सुबह एक बार पानी डाल देते और शाम को हम लोग दिया दे देते तो क्या तकलीफ होता। तो उसने बताया तुलसी एक पेड़ ऐसा है जो पेड़ की आपका दिन और रात दोनों समय में ऑक्सीजन देता है, बाकी कोई पेड़ नहीं देता है। तीसरा मैंने पूछा, ये बात लिखा है उसमें, आप पीपल का पेड़ को नॉर्मली शनिवार का दिन में हम लोग पूजन करते हैं, उसमें गुड़ थोड़ा रख देते हैं, दिया देते हैं। तो मैंने फिर उसको पूछा कि पीपल का पेड़ को क्यों देते हैं। पीपल का पेड़ ही एक पेड़ है जो कि ओजोन देता है, O3, जो कि हमारा सूर्य किरण को या हमारा एटमॉस्फेयर को ये करके रखता है। ये तो मैंने भौतिक या आपका धार्मिक चीज को बताया। अभी एक किस्सा बताता हूँ। ये किस्सा, ये चुटकुला है, एकदम प्योरली चुटकुला, मैंने सुना है, लेकिन आप लोग का सामने इसको बताने से शायद उसमें से कुछ चीज हो जाएगा। ऐसे तो सरदार जी लोगों के बारे में बहुत सारे चुटकुला होता है, इसका डबल मीनिंग है। कुछ लोग उनको बहुत अच्छा मानते हैं, मैं तो अच्छा मानता हूँ। मेरा जो जितना सरदार जी लोग हैं बहुत बड़ा प्यारे दोस्त हैं उसमें से, तो इसके बारे में बोलते हैं। तो इसके एक संदर्भ में एक बात हुआ, ये एकदम प्योरली चुटकुला है, आप इसको किसी को बुरा ना लगे, मैं लेकिन इसको इंडिया का संदर्भ में, मेक इन इंडिया का क्या महत्व है, इसका एक चुटकुला के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक रॉकेट यान स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब फायरिंग नहीं हुआ, उसका इंजन में इग्निशन होना चाहिए था, नहीं हो पाया। तो अमेरिका में बड़ा चिंता हुआ कि ये कैसे इसको स्टार्ट किया जाए, बन के उसको लॉन्चिंग पैड में रखा गया है, उसको उतार नहीं सकते, इस रॉकेट को हमको फायरिंग करना है, इग्निशन करवाना है। तो इसने इग्निशन करवाने के लिए वो बाहर का देश में से लोग, कुछ साइंटिस्ट लोगों को बुलाए। तो हमारा इंडिया से कोई लोग नहीं मिले, तो कुछ सरदार जी एक थे जो बड़ा मैकेनिक्स थे, मोटर मैकेनिक्स,
उनको बोले कि आप रिप्रेजेंट कीजिए इंडिया को, वो चला गया। आप सब लोग अपना अपना थ्योरी सुनाते रहे, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते रहे, और इग्निशन करने के लिए वो स्टार्ट स्विच मारते रहे, हुआ नहीं। तो हमारे जो इंडिया के सरदार जी थे, विथ ऑल एपोलॉजी, उनको बोले कि आप थोड़ा क्यों नहीं ट्राई करते, आप चुपचाप बैठे हुए। तो सरदार जी बोले कि ठीक है मैं करता हूं। वो बोले कि रॉकेट को थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए। वो टेढ़ा कर देने के बाद फिर इग्निशन मार दिया, तो इग्निशन हो गया रॉकेट में, आपका हुए हो गया। तो उसको पूछा गया कि आप इसको कहाँ से हासिल किया, तो उसने बोला क्या है जी इसमें, तो ये बड़ा आसान का चीज है, हमारा तो इंडिया में जो बजाज का स्कूटर है हम सुबह सुबह उसको स्टार्ट करते हैं, नहीं स्टार्ट होता है तो हम टेढ़ा कर देते हैं। ये ह्यूमरस है, लेकिन इसका पीछे भी एक तत्व है। इसका पीछे जो मैसेज है कि हम हर टाइप का में एक्सपर्ट हैं, हम कर सकते हैं। हम उसको दूसरा हिसाब से बोला जाए तो हम थ्योरी में पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग काफ़ी एडवांस हैं, और हम प्रैक्टिकल में ज़्यादा बल देते हैं, ध्यान देते हैं। तो इसलिए इंडिया में आप सबको मिलेगा, जुगाड़ मिलता है सर, जुगाड़। आप जुगाड़ मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, उसको कुछ समझाने का आवश्यक नहीं है। कल ही पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था कि ई रिक्शा के लिए आप लोग रिलैक्सेशन कर रहे हैं, तो बोले कि सर जुगाड़ के लिए क्या है। तो इसलिए इंडिया में कुछ भी बनाया जा सकता है, हम इंडिया आगे आ सकते हैं, हमको कोई कंपटीशन में नहीं आ सकता है। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो लॉन्चिंग हुआ था यहाँ मेक इन इंडिया, ये सफल हो सकता है। उसमें हम लोग सब मिलके काम करना चाहिए, और सरकार उसमें ध्यान दे रहा है। मैं इसी शब्द के साथ पुनः एक बार दीपक रथ ने और बाकी देवी और सज्जनों, आपने समय दिया और कुछ बोलने के लिए समय दिया। मैंने जैसे बताया कि सिचुएशन है, मेरे को आपको यहाँ से संबोधित करने के तुरंत बाद हॉल छोड़ के जाना है, क्योंकि मेरे को एयरपोर्ट क्रॉस करना है और आसाम जाना है। तो इसी शब्द के साथ पुनः आप लोग को सबको, अगर बोलने में कोई गलती उलती हो गया होगा, हम कोई पब्लिक स्पीकर है नहीं, बड़ा ये कुछ भाषण देते नहीं। आप लोग को अच्छा भाषण विज्ञान भवन में सुनाने से ये मीडिया का इवेंट हो सकता है, न्यूज हो सकता है, लेकिन इसके कारण वोट मिलता नहीं। तो इसलिए हम ये भाषण के आदी नहीं है, हम लिखित भाषण कभी पढ़ते नहीं। हम जो पब्लिक में जाते हैं वहाँ का सिचुएशन देखते हैं, क्या मूड है जनता में, उसके हिसाब से गाली देने से लोग ज़्यादा पसंद करेंगे या कोई इंटेलेक्चुअली कोई भाषण देने से अच्छा पसंद करेंगे, उसको देख के बोल लेते हैं और उतने में अपना काम चल जाता है, बाकी कोई नहीं। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी का सिग्नेचर स्टाइल है कि अपना काम कम बताना और सबके दिलों को जीत जाना। इस अवसर का फायदा उठाते हुए मैं उनसे निवेदन करूंगी कि तीन लोग हैं जिन्हें हम सम्मानित करना चाहेंगे उनके हाथों। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी सौरभ तिवारी से कि वो मंच पे आए। ये सुदर्शन न्यूज के साथ है और फिलहाल सुदर्शन न्यूज पे ये पूरा प्रोग्राम सुबह से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और जब उनकी बात की तो मैं आपको ये भी बता दूं, CNN IBN पर भी ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो सौरभ तिवारी को हमारे माननीय मंत्री इस अवसर पर ये खास भेंट दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगी कि अनिल धीर जी, जो कि उदय इंडिया के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं, वो मंच पर आए। उन्होंने कई कवर स्टोरीज को लिखा है और कई आर्टिकल्स उदय इंडिया में उन्हीं की बदौलत लिखे गए हैं। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आए।